আমরা আজও অবধি আমরা সেটা পালন করে এসেছি। কিন্তু আজকে কেন আমাদের প্রয়োজন হলো? কেন আমাদের ধর্মকোড প্রয়োজন হলো? আমাদেরকে মানুষ বোঝাতে হবে আমাদের একটাই ধর্মকোড হবে কি, আদিবাসী ইজ এ নট ধর্ম। আমাদের আদিবাসী দিতেই হবে। আমরা আদিবাসী কিন্তু কারো ধর্ম নয়। আমাদের কোর্টে আমাদেরকে মিলিত হব ওই মুসলিমদের মতো। তাহলে আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা থেকে যখন আমরা আস্তে आस्ते বিভিন্ন ধর্ম। धन्य है कि हम सभी आदिवासी और भारत के प्राय सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए। हमारे राष्ट्रीय संयोजक देव कुमार धान जी हैं, भुवन सिंह कोराम जी, विनोद नागवंशी जी, मंगला ताई जी, लक्की भाई जाधव जी, मोतीलाल सरीन जी, जनार्दन कोड़ा जी, भरत प्रसाद खरवाण जी, प्रेम साई मुंडा जी और भी जितने मंच पर हमारे आज उपस्थित हैं, और सर्व अंत में आप सभी को मेरा अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा की तरफ से आप सभी आदिवासी भाई बहनों को सेवा जोहार। मुझको लगता है आप जो लोग दूर दराज ग्राम से आए हुए हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन, मातृशक्ति पितृशक्तियां, हो सकता है कि हिंदी उतना ठीक से समझ नहीं पा रहा। हमारे जो शिक्षित वर्ग है वो सब कुछ समझता है, तो मैं बीच बीच में बांग्ला भी आपको बोलूंगा, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके लिए रखा है, मंच के लिए नहीं रखा। इस मंच पर हम लोग प्राय सभी जगह जुटते हैं, प्रत्येक राज्यों में जब भी इस तरह का धर्म कालम का मांग होता है, धरना भी देते हैं हम जंतर मंतर में, तो वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ दिल्ली की भाषा चलती है, अन्य राज्यों की भाषा अन्य राज्यों में चलती है। তাহলে আমি প্রথমে যারা ভাই বোনেরা এসছে, হয়তো প্রথমবার এসছেন এখানে, আর অনেকজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আমার রিপোর্টার ইন্টারভিউ নিচ্ছিল, ও প্রশ্নে বলছে আপনারা কিসের জন্য এখানে জমায়েত হয়েছে। অনেকজন বলতে পারি, কেন ওদের মাথায় এটা ঢুকছেই না যে আমরা কি কাজের জন্য এসেছি, কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি। তাই আমি বলছি একদম সাধারণ কথা, একদম সরল ভাবে, এই যে মঞ্চটা আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে শুধু একটা কারণে। কারণটা কি তাও আপনারা বুঝবেন কি বুঝবেন না মনে হচ্ছে না আমার। এই যে ধর্মকোলাম, ধর্মকোড বারবার এটা উচ্চারিত হচ্ছে প্রত্যেক বক্তার মুখ থেকে। এই ধর্মকোডটা কি, আমাকে কি করতে হয়? এত জমায়েত হওয়ার পরে খাওয়া দাওয়া করলাম, সবকিছু করলাম, বসলাম, আসলে ব্যাপারটা কি? মঙ্গলস্বরী খুব ভালো কথা বলে গেলেন, আমি ওনার কথায় আর যেতে চাইছি। ধর্মকোড মানে হচ্ছে কি আমাদের প্রায় 10 বছর পর পর জনগণনা হয়, ভারত সরকার জনগণনা করায়, এবং এটা দেখা যায় 10 বছর আগে আমার এত লোক ছিল, 10 বছর পরে আরো লোক বাড়বে, তার 10 বছর পরে আবার লোক বাড়বে। মোটামুটি যে জনগণনা 2021-এ হবার কথা
11তে হয়েছিল, তারপরে 10 বছর পরে মানে 21। সেটা হয়তো নানা কারণে সে 21-এ হয়নি, প্রায় 15 বছর মাথায় 2026-এ এবং 2027। এটাও অনেকজন বুঝতে পারছেন এটা দুবার গণনা কি করে হবে। আমাদের কাছে তো একবারই আসতো, জিজ্ঞেস করতো, চলে যেত। তাই দুবার গণনা কিসে? একটা আগস্ট মাস থেকে হবে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এটা বলেছে যে পশ্চিমবাংলার জনগণনা 1 আগস্ট থেকে শুরু হয়। এবং তার আগে জনগণনা কি থাকতো, একটা ফর্ম থাকতো, আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য জিজ্ঞেস করা হতো, আপনারা নিজে মুখে আপনারা জবাব দিতেন, তারা ওটা লিখতো, আপনার থেকে সই করাতো আর চলে যেত। এখন প্রযুক্তি সময়, ডিজিটাল সময়, তাই এইবারে জনগণনা কাগজে হবে না, কিসে হবে? অ্যাপে হবে, কম্পিউটারের মাধ্যমে হবে। আপনাদের কাছে ভোট গণনা লোকেরা আসবে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি। এই যে 1 আগস্ট থেকে যেটা হবে ওটা হচ্ছে আপনার পুরো বাড়ি বিবরণ। সেদিনে আপনাকে ধর্ম জিজ্ঞেস করবে না, এটা মেনে রাখুন। সোজা আমি বোঝাচ্ছি ব্যাপারটা। আপনার বাড়িতে কি আছে না আছে, গরু আছে, ছাগল আছে, কি কি আছে, গাড়ি আছে, বাংলো আছে, কি আছে, এই তথ্যগুলো ওরা জোগাড় করবে। প্রায় 40-42টা কোশ্চেন রয়েছে, তাতেও বেশি হবে। ফরম্যাটটা এখনো আমাদের কাছে আসেনি, তাহলে ফরম্যাটটাই আমরা বলে দিতাম কোথায় কি আছে। তবে একটা কথা বলবো, এর আগেও একটা মিটিং আমি এই ব্যাপারটা বলেছিলাম, যখন তথ্য আপনি দেবেন আপনারা আদিবাসী এটা মেনে রাখুন, আমরা আদিবাসী এটা মেনে রাখুন। তথ্য যখন জিজ্ঞেস করবে কি আপনার 2 চাকা গাড়ি আছে, হ্যাঁ আছে। কটা গাড়ি আছে? 2টো, একটা ওই ছেলে চালায়, একটা ওই ছেলে চালায়। বাড়িতে বড় টেলিভিশন রেখেছেন, এসি চালান, ইলেকট্রিক কনজাম্পশন কত, কি আয় আপনাদের, কোথা থেকে আয় স্রোত আছে। তবে যেহেতু আমরা আদিবাসী, আমরা সবাই জানি আমরা নিচু থেকে উপরে আস্তে আস্তে উঠছি। আমাদের মা বাবার কাছে কোনো কি বলে ধন জঙ্গল জমি কিছুই ছিল না, ধরেনি, সব ঘুরে বেড়াতো, একটা সময় ছিল। তখন আমাদের কাছে কিছু ছিল, আমরা একদম 0% অশিক্ষক ছিলাম, নিরক্ষর ছিলাম, 0%। আমার পূর্বে আমার বাবা অত পড়াশোনা করেন, 2-4 ক্লাস পড়েছেন। আর বাবার মাথায় আমি যখন সেকেন্ড জেনারেশনে আসলাম, তা আমি এমএ পিএইচডি করেছি, একটা কলেজে পড়াই। এই ধরনের সবাই উঠে এসছে। পুরো বাড়ি বিবরণটা পুরো অস্পষ্ট ভাবে দেবেন না, যেটা খুব প্রয়োজন সেটাই বলবেন। যদি গাড়িটা না দাঁড়ায় আপনার কাছে, ও বলবে আমার কাছে গাড়ি নেই। এসি যদি ঘরে ভেতরে থাকে, ও বাইরে থেকে আপনার ডাটা নিচ্ছে, বলবে এসি নেই। এটা সরকারের আর একটা চাপ, এটা হাওয়া আপনি শুনে আছেন কি, যেমন ওবিসিতে ক্রিমি লেয়ার আর নন ক্রিমি লেয়ার করে দিয়েছে। এবার ওরা ভাবছে কি আদিবাসীর মধ্যেও এই তথ্যটা নিয়ে ক্রিমি লেয়ার আর নন ক্রিমি লেয়ার, মানে কারা গরিব কারা ধনী। সোজা কথা বলতে, যদি আপনি ধনী হয়ে যান, আপনার কাছে সবকিছু আছে, চাকরি করছেন, সবকিছু আছে, তাহলে আপনাকে আরক্ষণ দেওয়া যাবে না। এটা কিন্তু সরকার করতে চলেছে। আমরা এইভাবে কিন্তু আদিবাসী ভাগ হতে দেব, ওরা এটাই চাইছে। যে শিক্ষার অধিকার আপনি পেয়েছেন, সবই অধিকার পেয়েছেন, কত অধিকার দিয়েছে জানি না। যারা ক্ষেত মজুরি করে তারা ক্ষেত মজুরি করছে, তারা শিক্ষার ব্যাপারে কিছু জানে না।
যারা ডাটা ফিল আপ করতো ওই যে 6টা ধর্ম ছিল ওর মধ্যে একটা টিক করে দিত, যখন বলতেন আমার ধর্ম কি লিখবো, আচ্ছা ঠিক আছে হিন্দু লিখে দিচ্ছি। কিন্তু এখন একটু সজাগ থাকুন, আমাদেরকে নিয়ে এসে কোথায় বনবাসী। আপনি শুনেছেন, আপনারা খবর কাগজ পড়ছেন, আপনারা টিভি দেখছেন, টিভি চ্যানেল দেখছেন, খবর নিউজ দেখছেন। আমাদের শাহবাবু এখন যেটা 2 সপ্তাহ আগে হলো, তাতে বিশাল বাহিনী আদিবাসী ভাইরা যোগ দিয়েছে। ওরা কি আমাদের পক্ষে ছিল? বা সাজি আমাদের পক্ষে ছিল না, পক্ষে ছিল না। ওনার মুখে ওই ভাষাটা, অন্তরের ভাষাটা বেরিয়ে গেছে বনবাসী। অনেকজন বুঝবেন না, ও বলেছে বনবাসী, আমরা বনে বনে থাকি তো ওই জন্য বনবাসী না। এটা একটা বড় চক্রান্ত আমাদের মধ্যে আছে। কখনো গিরিবাসী বলতো যে এরা পাহাড় থাকে, এরা জঙ্গলে থাকে, তাহলে আদিবাসী ওই রকমই ন্যাংটা হয়ে থাকবে, তখন ওরা বলবে যে আপনারা বনবাসী। তার মানে ওরা এই চোখে দেখতে পাচ্ছে না আমাদেরকে, এই যে জামা কাপড়টা আমরা পরেছি, একটা স্কুলে কলেজে যাচ্ছি, এটা ওরা দেখতে চাইছে না। তার মানে একবার কি করবে, যে জমি সমতল ওখানে কোনো আদিবাসী নেই, যেদিকে জঙ্গল ঝাড় রয়েছে ওদিকে যারা থাকে, বনে জঙ্গলে থাকে, তারাই একমাত্র আদিবাসী, বাকি কেউ নেই। আমরা আপনারা কেউ নেই। আর এই প্রমাণটা আপনারাই দিয়েছেন। গত 2011 সেন্সাসে আপনারা দিয়েছেন এই ব্যাপারটা। আপনারাই হিন্দু লিখিয়েছেন, আপনারাই খ্রিস্টান লিখিয়েছেন। কেন? এই যে আমরা এবারে একত্রিত হয়েছি, এটি বোঝাবার জন্য আপনাদের। আমরা হিন্দুও নয়, আমরা খ্রিস্টানও নয়, আমরা জৈনও নয়। কি আছি আমরা? হিন্দি में कहावत है जब जागा तब सवेरा। এটা আপনাদের মাথায় দেওয়া যে 16 থেকে 18 থেকে 20,000 লোক, 20 কোটি লোক আদিবাসী আছে। ওদের খাতা কলমে 3-4 লাখ আছে, 3-4 কোটি আছে বাস। 15 থেকে 17 কোটি বাদ। তো আমাদের যে বল ছিল, আমাদের যে শক্তি ছিল, সেটা ক্ষীণ হলো। এবারও তারা চাইছে এই যে পরিমাণ 3 লাখ ছিল ওটা 30,000 নেমে যায়। আপনাকে জোর জবরদস্তি বলবে ও আচ্ছা আদিবাসী আছেন তো হিন্দু ধর্মেই तो मानें तो हम ठीक कर দিচ্ছি। प्रमुखता पे बात की जा रही है। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक वेस्ट बंगाल के जो भी टीम है, पूरी आयोजक मंडल को मैं गड़ा गड़ा सेवा जोहार करते हुए हमारे देवतुल्य मंचा सिंह जो मंच में आसीन हैं, आपको सर जोहार। और विभिन्न भारत के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से आए हुए मातृशक्ति और पितृशक्ति को भी एक ही स्वर में सादर सेवा जोहार। मैं अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदिवासी पहचान दिलवाने वाले नायक झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा जी को सत सत जोहार। हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी सत सत जोहार। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला जो आदिवासी बहुल है, मैं राम सूरज सिंह नेटी, वहाँ पे गोंड, पनिका, चेरो, अगरिया, पठारी, तरह तरह के हमारे जनजातियां में अभी काउंट किया गया है। जैसे अभी आप लोग हमारे विद्वान जन, हमारे समाज के, हम लोगों को बताना चाहूंगा कि जो गोंड जनजाति वहाँ पे है, बगल जिला में, बगल जिला चंदौली है, वहाँ SC में रखा गया है। बगल जिला बनारस है, वहाँ OBC में है। हमारे सोनभद्र में ST में। SC ST OBC की बात नहीं है, हम यदि एक होना चाहेंगे तो हम आदिवासी की बात करेंगे। आदिवासी पे हमें लगता है कि जब से कार्यक्रम शुरुआत हुआ तब से चल रहा है। आदिवासी को एक पहचान दिलाने के लिए हमें लगता है सबको बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा।
भगवान बिरसा मुंडा एक लोग निकले थे और मालूम है कि 25 साल में ही उनके साथ क्या होगा से इतिहास आप जान रहे हैं। तो कम से कम आज उस दिन में क्या स्थिति था और आज की क्या स्थिति है, अब तो कम से कम हम लोग जागे हैं। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं। हमारे समाज में क्या है, अशिक्षा की कमी है, नशा की बहुत आयात है। जनजाति या आदिवासी लोग क्या है, महुआ सड़ाएंगे और दारू पी के मस्त रहते हैं। जो भी बातें कर रहे हैं सर आप लोग, जब तक जन जन तक नहीं पहुंचेगा हमारी आवाज, तब तक हमें सर अभी जो जनवरी या फरवरी में जनगणना, अभी तो मकान गणना हुआ है, जनगणना में तभी हम शामिल होंगे, सफल हो पाएंगे जब एक एक घर को हम ऐसे ही दे पाए। मीडिया प्रभारी को भी मैं निवेदन करूंगा सर, क्योंकि आप लोग का प्रमुखता जबरदस्त रहती है। आप पूरे एक जिला नहीं, एक प्रदेश नहीं, बल्कि ये पूरे देश में ये मैसेज फैलना चाहिए जहां आदिवासी हों, ताकि हम अभी फरवरी से पहले अपने आप को सजग कर सकें। अभी मैं पर्यवेक्षक के तौर पे हूं। मेरे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में जनगणना अभी मकान गणना चला है, प्रगणक लगे हुए थे, सुपरवाइजर लगे हुए थे। जिस घर में जा रहे हैं उसमें कहा गया कि आप पूछ के उस पर फिलअप करेंगे, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय अभी भी इतना डर रहा है कि हमारा 5 किलो राशन न छीन जाए। ये स्थितियां हैं अभी समाज में। अपने राशन को बचाने चक्कर में है कि यदि हम डेटा गलत कि तुम्हारा कितने मकान है, कितने कमरे हैं, टीवी है, यही सब पूछा जा रहा है। कुल 34 सवाल है, लोग बताने से कतरा रहे हैं। तो धर्म अभी कोड जब मांगा जाएगा तो कम से कम जब तक हम बताएंगे नहीं, तब तक हमारे समाज के लोग, अभी सर जी बोल रहे थे कि कुल 20 करोड़ की बात कर रहे थे। अब हमें अपने आप को पहले जगाना होगा। हम जागेंगे तभी आगे किसी को ले जा पाएंगे, क्योंकि समाज आप देख ही रहे हैं कि अपनी संस्कृति को हम लोग भूल गए हैं। हम लोग शादी भी है क्या, अभी आप एक सर जी बता रहे थे कि अब ब्राह्मणी व्यवस्था छोड़ दिया गया, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बताना चाहूंगा, मेरे यहाँ धर्माचार द्वारा शादी होता है, शादी पद्धति, वो छठी हो, मरनी हो, मतलब किसी में या तो न धर्माचार हो तो अपने जो सगा जन नाथ होते हैं, वो नाथ लोग उस परिवार को उद्धार कराते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था से नहीं होता है। तो कम से कम अपने धर्म का नाम। दूसरी बात, अपनी पोशाक पहनावा, आज हम लोग जींस पैंट में आ गए हैं, अपनी जो पहनावा ओढ़ावा छोड़ दिए हैं। इधर हम आदिवासी की बात कर रहे हैं, बोली की बात करिए, बोली भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो ठीक है, बांग्ला वाला बोलिए, आसाम में आसाम बोलिए, लेकिन जो आदिवासी की है उस भाषा को हम लोग प्रयोग करें। आदिवासी भाषा नहीं, लेकिन पहनावा तो प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात, जो पूजा पत्ती होती है, हम लोग प्रकृति का पूजक हैं। आज जो जल जंगल जमीन की बात किया जाता है, इसमें आप देख रहे हैं कि सर हम मंचासीन में जो विद्वान जन बताना चाहूंगा मैं थोड़ा सा सोनभद्र का हवाला, कि अभी आप बात कर रहे थे कि गैर आदिवासी, हमारे आदिवासी बहु बेटियों से शादी करके 400 बीघा के सामने मामला आया है सर। 400 बीघा के सामने आया है। गैर आदिवासी हमारे बहन बेटियों से शादी नाम मात्र कर रहा है, सिर्फ उसके संपत्तियों को हड़पने के लिए। तो वो दिन जो अभी आप बात कर रहे हैं कि आने वाला समय है, वो आ चुका है। हम चाहते हैं कि हम लोग एक स्वर में पुनः बिरसा मुंडा पैदा हो, और सबके मन में होनी चाहिए, एक बिरसा मुंडा नहीं, तभी मेरे समाज का उद्धार हो पाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं सबको ये जनगणना पे ही फोकस है। यदि जनगणना हमारे हाथ से चला गया तो फिर सोच लीजिए कई साल बाद हम लोग उस, फिर साल बाद नहीं, अंत ही हो जाएगा। तो धन्यवाद। पुनः अपने स्वर को यही विराम करते हुए एक बार जय घोष करेंगे आप लोग। हम बोलेंगे जय जोहार, आप लोग बोलेंगे जय आदिवासी। जय जोहार, जय जोहार। धन्यवाद, आपने मौका दिया, और मैं चाहूंगा कि इस तरह से सब लोग आगे बढ़ के अपने इस हक हकूक़ को लिए लड़ें। धन्यवाद। अच्छा, जो आप लोगों को एक अपना अपना मतामत पेश करने के लिए लिखित
पर्चा दिया गया था कि आप सबों को मिला है? जरा हाथ उठाकर कहिए। सारे लोग क्या जमा दे चुके हैं? अच्छा, जो बाकी हैं वो जल्द से जल्द जमा देने की कृपा करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ दुमका झारखंड से वो भी लेखक हैं और आदिवासी के ऊपर में किताबें भी लिखे हैं। उन्हें उनका अमूल्य वक्तव्य देने के लिए उनको हम लोग माइक पर आमंत्रित करेंगे। एक जोरदार ताली के साथ उनका पहले स्वागत होना चाहिए। तो हम लोगों के सामने में आ रहे हैं अपने अमूल्य वक्तव्य को रखने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए, और भी सुंदर सा रास्ता दिखाने के लिए मानवतान मुसुदी टुडू गोमके। इनको सुने और गहराई तक सुने। साथी मुसदी टुडू जो है आदिवासियों को धर्म कोड को लेकर के 20 साल से काम कर रहे हैं। वो काम करने का अर्थात रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। इन्हीं की बुनियाद पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इनकी बातों को जरूर सुनिए, क्या कि अनुसंधान भी करते हैं, टीचर भी हैं, लिखते भी हैं, अब पूरा जीवन आदिवासियों के धर्म संस्कृति पर दे दिए। तो इनकी बातों को ध्यान से सुनिए। जोर से हाथ ताली हो जाए, क्या कि ये जो आदिवासी धर्म कोड के बारे में उन्होंने एक किताब भी लिखा। सुनिए उनका मन से बात को। वेस्ट बंगाल के आसनसोल के इस ऑडिटोरियम में उपस्थित राष्ट्रीय संयोजक श्री देव कुमार भांजी और साथ में मंच पर बैठे सभी मान्यवर साथियों, यहाँ पे उपस्थित पश्चिम बंगाल के हमारे माझी परगाना, रैयतगण और हमारे आदिवासी चिंतकगण और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकगण, यहाँ उपस्थित सोशल मीडिया के मीडिया कर्मीगण, आप तमाम साथियों को मेरी तरफ से, संथाल प्रणा दुमका की तरफ से, झारखंड की तरफ से जोहार। मैं चाहता हूं कि आपके बीच संताली भाषा में बोलूं, लेकिन इसके पूर्व मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संताली भाषा कितनों को आती है? हाथ उठाइए। संताली भाषा कितनों को आती है? 50% से अधिक है। तो ये यहाँ पे कुछ समान रहे संताली भाषा ते रोड अपे बड़ाई चुके मेरे कहना तेहे पूरा भारत दिसम रहे जनगणना या कमी भारत सरकार होते थे चला था ना, और तेहे भारत सरकार या जनगणना कागज रहे। अब वो तेही धरी आदिवासिया जहां नमो निशान के बनवा धर्म रिया जहां न्यूतम के बनवा भारत सरकार जनगणना रिकॉर्ड रहे नौका बुझे करना। अब तो धर्मान हर दोबन बांग करना, अब तो धर्म के बनवा और जहां लट्टू लट्टू अकिलान हर को मेन करा जुदी जहां इज्जत मिटा खाए, जहां इज्जत आम चबाई मेन का खाए, जो तो कोई लहारे उनिया धर्म चबाता है, उनिया भाषा चबाता है, उनिया संस्कृति चबाता है, उन्हीं इज्जत तो आज आज ते मिटा पसे नौका ना कथा गान गया भूसा तेही नवा धरती रहे जो तो कोई लहारे आदिवासी गुण है करना। और आदिवासी वा धर्म धरती वो कहले बिनावना एन हिले कोई आदिवासी को धर्म हो बिनाव करना। मेन खाई भावना रिया कथा दो नुआ करना जे तिहिन आबुआ धर्म नुतुम के बनवा तिहिन आबु बुन बाडाया नुआ भारत दिसम रे तीन धर्म मनाव को मिना कुआ तिहिन बौद्ध धर्म रे मिना कुआ, जैन धर्म रे मिना कुआ, सिख धर्म रे मिना कुआ,
बौद्ध धर्म रन माना हड़ मेना को 45 लाख मोठे, जैन धर्म रन माना को मेना को 85 लाख मोठे, सिख धर्म रन मेना को 2 करोड़ लेका, और अब पूरा भारत दिसम रे आदिवासी मेना को ना 15 करोड़ को जस्ती मेनखा एन रहो अब धर्म कोड रे अब जहान जायगा के बनु तबना नोआ अड़ी भावना रिया कथा कना और जनगणना तो नुना लट्टू जिनिस कना जे जनगणना रे अब संख्या तीन तहना ओना लेका तगे अब सरकारी नौकरी रे से जहां ना लेका ना नौकरी रे अब रिजर्वेशन रे हिस्सेदारी होता है ना ओना रिया जुड़ू हो अब उनका लेका बन जामा मेनखा भावना रिया कथा तो नुआ कना जे थी भारत रन आदिवासी को जहां तो 781 को जस्ती मिना बुना, झारखंड रे 32 टी का मिना बुना, बेंगल रे उनका के मिना कोआ मेनखा नुंका बुन हिरित पसिर चबाव कना जे आपा धर्म युतुते आइमा लेका बुन ओले कना आते ही नुआ खातिर ते भारत सरकार आबो मिटे धर्म कोड बाको एम दाड़ी बुन कना तेहिन बुन बडाय गया आदम हड़ सारना बुन खजो कना, आदम हड़ बिदिन बुन खजो कना, आदम हड़ जाहेर बुन खजो कना, आदम हड़ गोंडे बुन खजो कना, आदम हड़ फील बुन खजो कना और नोंका लेका न जाने तीन लेकान धर्म बुन खजो कना और तेहिन धरे आजादी बात रेहो तेहिन धरे अब जहान जायगा बाबुन नाम कदा अब उन बडाय गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑक्टर है जहां तो विदेशी रन शासक को तहे बना नवा दिसम चला बना को लगी उनको को बुझाव किदा आदिवासी अहमियत और ओना ऑक्टर धर्म कोड रहा अब को अलके गुना जहां पर जहां लिखाते 1941 धरे आदिवासी का धर्म कोड को अलरकाप किदा जैसे कि दिसम आजाद ना मैं अबुआ धर्म कोड या नितुम को आट किदा और नवा या सीधगी सफा सफी नवा दी जहारो कना या आदिवासिया नस्ल चाबारिया पिट टिकाना साजिश कान गया और तेहिन आबुरन हड़ हो नोंका बुन हिरिज बसर चबाव कना विचार धाराते जे कोई ओका लेकाय मेंदा उनका के आबु बुन हे आकना आदम हड़ हिंदी तो हो को मेंदा थोड़ा गान रोड लिखा आले ले बुझो जमा अभी पूरे भारत देश में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है लेकिन हम भारतवर्ष के आदिवासी इतने वर्गों में बटे हुए हैं कि आपस में हम एक नाम पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं जिसके चलते आज तक हमारा धर्म कोड के स्थान पर कोई नाम दर्ज नहीं है। हम पीछे की तरफ हम देखें तो ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों ने आदिवासियत की धर्म को समझा और उन्होंने आदिवासी को अपना धर्म कोड पर नामकरण किया। जैसे ही देश आजाद हुआ हम लोगों का धर्म कोड से नाम हट गया जबकि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमारा धर्म धरती की सृष्टि के समय से ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म उतना पुराना है लेकिन भारत के जनगणना में आजादी के बाद से धर्म कॉलम में मेरा कोई स्थान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी जाति को मिटाना है तो पहले धर्म को मिटाइए, भाषा को मिटाइए, संस्कृति को मिटाइए, वो जाति अपने आप मिट जाएगा। लगता है सरकार की ऐसे ही साजिश है और हम मिटने की कगार पर है। इसलिए आज ऐसे समय में सोचने के लिए मजबूर हैं जो कि इसी परिप्रेक्ष्य में आज धर्म महासम्मेलन आपके वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया है जिसके राष्ट्रीय संयोजक देव कुमार भान है जिसके प्रयास से इस मुकाम तक आज यह कार्यक्रम चल रही है। और अधिकांशतः आदिवासियों में एक समय कहा जाता था कि आदिवासी बहुत बड़े लड़ाकू होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं और यह सच्चाई भी है। आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य आदिवासी के नाम पर राज का भी नाम है, जिला का भी नाम है आदिवासी के नाम पर। संथाल पड़ा दुमका जो है संथाल क्रांति के बाद संथाल परगना का नामकरण भी हुआ है। ये सच्चाई है परंतु आज के दिनों में हम इतने बिखरे हुए हैं पता नहीं क्यों। लेकिन आज सोचने के लिए हम यहाँ विवश हैं। अब
धर्म कोड, धर्म की पहचान की लड़ाई, यह बहुत बड़ी लड़ाई है। जब तक धर्म कोड में आपका धर्म का नाम नहीं रहेगा, आपका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए अभी हमारे लोग विभिन्न नामों से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक चिंतन करने की आवश्यकता है। हम किस धर्म कोड पर सहमति बनाएं? सरना पूजा स्थल का नाम है, कुछ लोग सरना पर मांग कर रहे हैं। बंगाल में सारी भी मांग कर रहे हैं, कुछ लोग विदिन भी मांग कर रहे हैं, गोंडी मांग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये अपने स्तर पर आप जो भी बात बोलें, अपने क्षेत्रीय स्तर पर आप कुछ भी धर्म का नाम बोलें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक नाम होना पड़ेगा, एक नाम पर सहमति होना पड़ेगा, और ये नाम आदिवासी हो। बहुत लोग कहते हैं कि आदिवासी जो है, आदिवासी का क्या शाब्दिक अर्थ है? मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासी का शाब्दिक अर्थ आदिकाल से रहने वाला व्यक्ति ही आदिवासी है, और वो व्यक्ति भारत के मूल निवासी हैं। और केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से यह पता चलता है कि आदिवासी सदियों से बोला जाता रहा है। हमारे लोग आदिवासी ही बोलते हैं। ठक्कर बापा ने इन्हीं कारणों से 1869 में आदिवासी पर उन्होंने ये अपना वक्तव्य दे दिया कि यहाँ आदिवासी लोग हैं। चाइनीज यात्री ने जब भारत में प्रवेश किया था और चंपा नगरी में जब आया, तो उन्होंने लिखा अपना डायरी में कि यहाँ आदिवासी भी हैं। भागवत शरण उपाध्याय जो प्राचीन भारत के इतिहास जिन्होंने लिखा, उन्होंने भी सिंधु घाटी के चैप्टर में उन्होंने भी लिख दिया कि यहाँ आदिवासी हैं। तो फिर हम क्यों दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि आदिवासी हम नहीं? इसी तरह से यदि आप विदेश में भी जाइएगा, इंग्लैंड में भी अपने देश के निवासियों को जो आदिवासी है ओरिजिनल बोलता है, वहाँ का भी शाब्दिक अर्थ है एब और ओरिजिनल, मतलब पहले से रहने वाले जो लोग हैं उनको आदिवासी। यहाँ भी पहले से रहने वाले जो हैं वो आदिवासी हैं। तो इतने शाब्दिक अर्थ को नकार करके हम यदि सरना मांगते हैं या अभी विदिन मांगते हैं, तो हम पूरे भारतवर्ष के लिए संबोधित अपने आप को कैसे कर पाएंगे? इसलिए विभिन्न तरह से जो मांग रहे हैं उनको सोचना चाहिए। इतनी बड़ी आदिवासी की शाब्दिक अर्थ को छोड़कर यदि हम दूसरे तरीके से मांगते हैं, तो अपने आप को साबित हम नहीं कर पाएंगे कि हम आदिवासी हैं। और इसीलिए इस मंच से मैं आप सबों को ये कहना चाहूँगा कि हम आदिवासी हैं और पूरे देश के लिए आदिवासी धर्म कोड ही उपयुक्त है, और इसी मांग पर हमें हर जगह से समर्थन प्राप्त करना चाहिए। चूंकि आदिवासी छोड़कर कोई भी धर्म कोड यदि हमें आवंटित होता है तो फिर हम बिखर जाएंगे। मैं उदाहरण के लिए बता देना चाहता हूं कि यदि कोई सरना बोलता है, सरना क्या है? पूजा स्थल का नाम है। हम भारत में 781 जनजाति हैं, आदिवासी हैं। सरना पूजा करने वाले एक पाहन होते हैं। संताली जाति में वहाँ नायकी होते हैं। संताल में जाहिर थान होता है। तो एक सरना यदि हम सबों के लिए सरना धर्म कोड मिल जाता है, तो फिर हम संताल जाहिर थान जाएं कि सरना स्थल जाएं? हम पहन से पूजा कराएं कि हम नायकी से पूजा कराएं? कितनी बड़ी भ्रम की स्थिति हो जाएगी। और इसीलिए यह सभी जातियों के लिए आदिवासी सबसे उचित है। इससे हम सभी आदिवासी भी संबोधित होते हैं और इसके जो भी कस्टम्स हैं अपने अपने सब्सक्राइब में भी यह कस्टम भी फॉलो होगा। अभी एक प्रचलन अभी फिर लाद दिया जा रहा है कि आदिवासी के बदले वनवासी भी कहा जा रहा है। अब आदिवासी अच्छा लगता है कि वनवासी अच्छा लगता है? क्या लगता है आप लोग को? एक हिंदू, कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू और आदिवासी में अंतर है कि नहीं है? हिंदू में क्या क्या लिखा जा सकता है, आदिवासी में क्या क्या लिखा जा सकता है? आदिवासी में संताल मुंडा हो लिखा जा सकता है, और हिंदू में क्या लिखा जा सकता है?
ब्राह्मण, तिवारी और सब बहुत सारे जात है, तो अंतर है कि नहीं? तो फिर हम कैसे वनवासी हैं, कैसे हिंदू हैं? इसीलिए आप हिंदू लॉ भी पढ़िएगा, हिंदू लॉ में भी आदिवासियों को अलग कर दिया गया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट भी पढ़िएगा 1956, उसमें भी आपको अलग कर दिया गया है। हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ ट्राइबल लॉ पर लागू होता ही नहीं है। तो फिर हम अपने आप को किस गर्व के साथ कहना पसंद करते हैं कि हम हिंदू हैं? इसीलिए अपने आप को भी अध्ययन करिए। सबका कस्टमरी लॉ होता है और उस कस्टमरी लॉ से हम गाइड होते हैं। और आदिवासी सबसे सर्वोच्च जाति होता है, इनकी रीति रिवाज, कल्चर सबसे धनी है, इसलिए गर्व होना चाहिए हम सभी को। और आदिवासी, एक समय आदिवासी को असभ्य भी कहा जाता था, एक समय गिरिवासी भी कहा जाता था, एक समय अनार भी कहा जाता था। लेकिन अब हम जाग चुके हैं, कोई कुछ भी बोले तो हमें उसका विरोध करना है और गर्व से हमें अपने आप को आदिवासी कहना है। और आदिवासी धर्म सभी दृष्टिकोण से उचित है और आदिवासी, हमें आने वाले समय में आदिवासी कॉलम मिले या न मिले, आदर्श कॉलम जरूर मिलेगा। आदर्श कॉलम पर हम लोग वैसा यदि क्या डेवलप होता है फॉर्मेट हम लोग देखते हैं, नहीं तो आदर्श में भी हम लोग का आदिवासी कॉलम में आदिवासी धर्म लिखेंगे और हम लोग का सब धर्म जो होता है ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे। और जब तक आदिवासी धर्म कोड नहीं मिलेगा तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। और ये आंदोलन, चूंकि हम नए सिरे से हम लोग धर्म निर्माण नहीं कर रहे हैं, धर्म कोड भी नए सिरे से हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं, हम लोग पुनर्स्थापित करना चाह रहे हैं। जो था पहले उनको हमको पुनर्स्थापित किया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरना, विदिन, जाहिर, मरांगुरु, गोंडी, भील या जो भी हम बोल रहे हैं आपस में, वो आदिवासी के अंतर्गत है और एक छाता के नीचे हम सभी हैं और आदिवासी सबसे ऊपर है। इसीलिए हम लोग जहां भी हर राज्य में एक माइक्रो लेवल स्तर में भी काम करना हमें चाहिए, क्योंकि एक वर्कशॉप के माध्यम से हमें लोगों को समझाना होगा, कार्यशाला के माध्यम से लोगों को बताना होगा कि सरना किया है, जाहिर किया है, विदिन किया है और आदिवासी किया है। इसीलिए हमारे लोग चूंकि ज़्यादा बिखरे हुए हैं, इसको जमीनी स्तर पर हम लोग को बताना पड़ेगा। और हमें लगता है कि जमीनी स्तर पर उन सभी को कार्यशाला के माध्यम से यदि बताएंगे तो निश्चित रूप से समझेंगे और आदिवासी धर्म कॉलम पर सभी लोग सहमत होंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मसूदी जी को, जोर से हाथ ताली हो जाए। उन्होंने ये आदिवासी धर्म कोड लेकर के किताब लिखा है, देखिए उन्होंने साथ लाया है, तो हम दिखा नहीं पा रहा, अभी तक हमारे पास में आया नहीं, लेकिन लेके आए हैं। आप लोग जरूर ले लीजिएगा। तो देखिए, आप लोग को करीबन 12 बजे एक क्वेश्चन पूछे थे, एक बात बोले थे, याद है? आप लोग को एक बात बोले थे, क्या बात बोले? तो हमारा दादाजी का नाम पर 10 एकड़ जमीन था, बोले थे, याद है? तो हमारा पिताजी को मालूम नहीं था, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लिख लिए तो हमको जानकारी हुआ कि दादाजी का नाम पर 10 एकड़ जमीन था, लेकिन हमको अभी तक मिला नहीं। हमको जानकारी मिला कि था। हमको क्या करना चाहिए? मसूदी जी ने बताया कि हम लोग का आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी का जो धर्म कोड है, विभिन्न जब भी कोई सरकार था, अंग्रेज सरकार था, उसके बाद में सेंट्रल वाला सरकार आया, जिस तरह से कोई वनवासी तो क्या वासी, बहुत कुछ नाम दिया। तो अंग्रेज के टाइम में हम लोग का कुछ एबोरिजिनल एनिमिस्ट ऐसा एक धर्म नाम दे करके लेकिन कोड किया गया था, गणना किया गया था,
कितना 1871 से, ठीक बता रहे हैं तो মানে ঠিক বলছি তো? 1871 সাল থেকে কিন্তু আমাদেরকে ধর্ম হিসেবে জনগণনা করা হয়েছিল ইংরেজ আমলে। আমরা জানতাম না, এবার জেনে গেছি। तो सेटा की हमरा छेड़ देबो? हम लोग छोड़ देंगे? क्या करेंगे? अपना जान बाजी लगा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? कितना आदमी सहमत है? कितना आदमी हाथ उठा के बताइए? सब सहमत है तो तब लड़के हम लोग को तो लेने का आदत है। आज बिरसा मुंडा लड़े थे बोल के हम लोग को CNT एक्ट मिला है। अब सिद्धू कान्हू लड़े थे बोलते हम लोग को वही एक्ट मिला है। जितना भी आदिवासी कोई अधिकार अगर मिला है तो हम लोग लड़ के लिए है। ये धर्म कोड भी हम लोग को लड़ के लेना है। तो अभी आप लोग को सामने में हम संक्षेप में 2-4 बात बोलने के लिए अनुरोध करेंगे। जो हम लोग का पश्चिम बंगाल आदिवासी घोड़ा समाज कल्याण संगठन के ओर से अजय मोदी महाशय को जोर से हाथ ताली हो जाए। हम लोग का पश्चिम बंगाल आदिवासी घोड़ा समाज कल्याण संगठन का ओर से अजय मोदी। जोहार। आज के বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত আমার আদিবাসী প্রতিনিধিগণদের জানাই আমার পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কলা সমাজ কল্যাণ সংগঠনের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। আজ এই যে ধর্ম সংকট, এই ধর্ম সংকট কিন্তু আমাদের আজকের বিষয় নয়। এই বিষয় আমাদের গত ইংরেজ পিরিয়ডে যে সেন্সাস, সেই সময় তাদের যে শাসন ব্যবস্থা ছিল, সেই শাসন ব্যবস্থা শেষ হওয়ার পর, অর্থাৎ স্বাধীন ভারতবর্ষের পর আমাদের যে সেন্সাস, সেই সেন্সাসে আমাদের কিন্তু আদিবাসী যে ধর্মঘট পূর্ববর্তী সময়ে ছিল, সেই ধর্মঘট কিন্তু আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাই আজ আমরা এই ধর্মঘট নিয়ে বিভিন্ন জেলা, বিভিন্ন রাজ্যে আমরা কিন্তু আলোচনা সভা করছি। কারণ আমাদের সেই পুরনো ধর্মঘট যাতে ফিরে পায়, এই ফিরে পাওয়ার জন্য আজকে আমরা সমবেত হয়েছি। এই ধরনের সভা আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিটি জেলাতে, প্রতিটি ব্লকে সমাজকে নিয়ে ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা করতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই যে ধর্ম বিষয়ক সমাধান, সেটা কিন্তু সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। আমি মনে করি আমরা অনেকেই আছি, সাঁওতাল, কড়া, ভিল, ওরাং, মুন্ডা, আমাদের এই যে বিভিন্ন ধর্ম মেনে চলার রীতি রেওয়াজ, আমরা কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ ঠাকুরদা বাবা সেই সময় থেকে আমরা কিন্তু आदिवासी स्थिति बहुत ज्यादा है। अब मुझे पहले ही कह दिया गया, कम शब्दों में बोलिए। समस्याएं बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 50 साल से बोल रहा हूं। हर एक दिन 1 घंटा मान के चलिए। अब मोबाइल में कैलकुलेट कर लीजिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। संविधान के अनुच्छेद का बात हो रहा है। मुझे पहले पता नहीं था कि संविधान में कितना अनुच्छेद है,
मेरा जो फिजिक्स पढ़ाता है, कॉलेज में मेरे शिक्षक ने पूछा आपका शरीर में कितना छेद है। बहुत मार्केबल बात बता रहे हैं, जो आप फिजिशियन है। मुझे मालूम नहीं था संविधान में कितना अनुच्छेद है, ये भी मालूम नहीं था मेरे शरीर में कितने छेद है। मैंने अध्ययन किया, लड़ाई किया, पढ़ाई किया, एमएलए बने, झारखंड अलग राज्य बने, लेकिन आप जाके पता चला 70 साल की उम्र में मेरा शरीर में कितना छेद है और संविधान में कितना अनुच्छेद है और आदिवासी में कितना भेद है। आपने बोला राइटर एंड फाइटर, उपाधि तो ठीक है दिया आपने। जिस जगह में आसनसोल है, पश्चिम बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि रचना की थी। मेरा सौभाग्य था, मैंने संथाली भाषा में 1913 में जो नोबेल प्राइज मिला था और मैंने गीतांजलि को संताली अनुवाद किया, सेरेंजांजलि। मतलब मैं अनुवाद कर दिया हूं बंगाल में। আমি বাংলা বেশ ভালো বলতে পারি, সান্তাতে में आड़ी आवगार गए देखा संताती रोड़ा इमें होड़कना इमें रोड़कना बांग्ला ही बोलबो कि संथाली बोलबो ना हिंदी में बोलेंगे। यहाँ एक अनुच्छेद का बात हो रहा है 25 हिंदी में 24 ये जो जमात है इस बीच में हमारे भारत देश के 700 आदिवासियों में से सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी आबादी वो है भील की आबादी। लेकिन मैं संविधान में सर्च किया, मैं बोडोलैंड की आसाम से भी आए हुए हैं आप। 1986 प्रफुल्ल महतो फर्स्ट मेरा दोस्त रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है, एक स्टूडेंट लीडर जब मिला और बाद में चीफ मिनिस्टर बना प्रफुल्ल महतो भिगु फुकन। मैं उस समय कोकड़ा झाड़, गोगाई गांव, वसाई गांव गया हूँ, साल बाड़ी बारपेटा गया हूँ, और जब आदिवासी को मारा गया वहां पे तो उस समय भी मैं कोकड़ा झाड़ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि बोडो एक छोटा स्मॉल ग्रुप, उसका संविधान के 8वें अनुसूची में संविधान देख लीजिए आप, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज है। मोर देन 2 करोड़ भील है भारत देश में, उसकी आबादी 8 शेड्यूल में उनकी भाषा की मान्यता नहीं है। मैं गर्व से कहता हूं, मैं संताली भाषा में बिलोंग करता हूं और 2003 में संताली भाषा 8 शेड्यूल हुआ है। मुझे और गर्व है कि मैं जब गीतांजलि को अनुवाद किया और मधुशाला को अनुवाद किया हरिवंश राय बच्चन की, तो 24 8 शेड्यूल के लैंग्वेज में से मैं वही आदिवासी खड़ा हूं जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्राप्त मुझे मिला। इसीलिए आप राइटर से जो नाम के राइटर बोला है और फाइटर के नो बोला है। अभी ज्योति बसु नहीं है इस दुनिया में, नहीं दिलीप सिंह गोरिया भी नहीं, बीडी शर्मा भी नहीं। आप संघर्ष करते करते बाल पक क्या होगा और दिमाग विचार भी परिपक्व हुआ होगा। अभी मेरे से ज्यादा उम्र होगा शायद, हलवा वाला बोले आप लोग। ये तो हलवा वाला नहीं है, ये किसी के भी पार्टी लाठी एमएलए का हलवा टाइट कर देगा। इस उम्र में इतना टाइट कर रहा है। हम सोचा हम ही 70 साल में गरज के बोलता हूँ, आज मेरा मुकाबला हलवा वाला से हो गया, हमसे ज्यादा गरजने वाला है। बोलता है 80 और 90 मत देखो, जिसके विचार जोशीला है, जो तेजस्वी है, जो तेज तर्रार है, वो नौजवान से भी आगे है। और 25 साल का नौजवान बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा था और आज का 25 साल का बिरसा मुंडा नाम तो रख दिया, लेकिन 25 साल का छोकरा लोग सब दारू हड़िया पी के सुतल है। हम लोग यहाँ
कहां मिलेगा धर्म कोड? कहां है प्रावधान? संविधान में प्रावधान है धर्म कोड। धर्म कोड का धारा कितना है? अनुच्छेद 25। There is a provision in our Indian Constitution, Article 25, the freedom of religion. भारत देश में 6 ठो उसी कोड से मिला है, 6 ठो धर्म कोड। हमको क्यों नहीं मिला, इसका कारण बताएंगे। आप बताइए, हम भारत के 15 से 20 करोड़ आदिवासी, 700 से ज्यादा समुदाय, पार्लियामेंट में 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजर्व सीट से निर्वाचित इलेक्टेड, एंड मोर देन 400 एमएलए फ्रॉम डिफरेंट स्टेट असेंबली, फिर भी हम भीख मांग रहे हैं कि धर्म कोड नहीं मिल रहे। मुझे खुद शर्म आता है क्योंकि मैं एमएलए रह चुका हूं। इस आंदोलन में कई लोग एमएलए बनेंगे और कुछ लोग बने हैं। मैं भी एक आंदोलन करके एमएलए भी बना हूं। 35 साल पहले एमएलए बने थे, तो उधर 35 साल पहले और अभी 35 साल कितना हुआ जी? मैं 70 साल का बूढ़ा बोल रहा हूं। जब अन्ना हजारे 90 साल का अन्ना हजारे जब जंतर मंतर बुलाता है दिल्ली चलो, और उसका आंदोलन में भारत देश के अंदर में लोकपाल कानून बन सकता है, तो हम लोग क्या हिजड़ा है ये है? 90 साल का अन्ना हजारे ने दिल्ली चलो बोला, और एक 90 साल का बुजुर्ग ने भारत देश में लोकपाल कानून बनवा दिया। वो एमएलए एमपी नहीं था जी। आंदोलन उसको बोलता टिकट, जो कृषि के काला कानून को निरंतर कई साल तक समझौता नहीं कि उन्होंने बोला मैं कृषि कानून बना कर रहूंगा, और जब तक कानून काला कानून नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेंगे मेरा डेड बॉडी घर जाएगा, मैं जिंदा नहीं जा सकता घर। और टिकैत ने कसम खाया, नरेंद्र मोदी को कृषि काला कानून वापस लेना पड़ा कि नहीं पड़ा जी? बोलिए, पड़ा कि नहीं पड़ा जी? लंदन में रह करके छोकरा, 32 साल का छोकरा, उसको मोबाइल सबके हाथ में, किसी ने बोला मोबाइल है कि नहीं, सब फटाफट निकाल दिया। लेकिन इसी मोबाइल में लंदन से महाराष्ट्र के छोकरा ने, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नौजवानों को कॉकरोच बोला, तो अमेरिका लंदन से बोला कॉकरोच नहीं है, और रातों रात कॉकरोच पार्टी बना दिया और 2 करोड़ नौजवानों को पूरा मेंबर बना दिया। कॉकरोच बर्दाश्त नहीं हुआ, आदिवासी को बर्दाश्त हो गया, वनवासी चुपचाप है। आदिवासी धर्म कोड मांग रहा है, सनातन बोल दिया चुपचाप है। आपने बोला वनवासी चुपचाप है, आपको बोला क्या सनातन है चुपचाप है, आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बना चुपचाप है। 12 आदिवासी, गिनती में 700 समुदाय, गिनती में 15-20 करोड़, 12 आदिवासी, और 13 एमएलए रिजर्व सीट से। जाति के नाम से रिजर्वेशन, पार्टी के नाम से टिकट। जाति के नाम से रिजर्वेशन लोकसभा में 47, और पार्टी के नाम से टिकट। शरद यादव मर गया, पार्लियामेंट में गाली दिया था हमारे आदिवासी एमपीओ को, बोला अरे बुड़बक क्यों चुप है रे, अरे गूंगा बहरा, अरे आदिवासी प्रतिनिधि रे, भारत का संविधान बना, आधा से अधिक भारत का संविधान में आदिवासी आदिवासी अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब लिखा है। भोले भले आदिवासी रे, तुमको एमपी बना के पार्लियामेंट भेजा है रे, कभी एकजुट होके आदिवासी का दुख तो बोलो तो रे। मैं तो शरद यादव हूं, यहाँ तो 47 एमपी जीत के आए हो जी, कभी भी आदिवासी का विधि विधान संविधान नहीं बोलता। अरे निर्वाचित आदिवासी गूंगा बहरा लंगड़ा लूला रे, जिस दिन पार्लियामेंट में बोलोगे
उस दिन पूरे भारत देश तेरा संविधान का एक एक पाई पाई हिसाब होगा रे, उस दिन पूरा भारत देश आदिवासी का होगा रे, ऐसा बोला था। हम बोलेंगे तो बोला गाली, जोशीला बोलेंगे तो हाथ ताली। सौरभ यादव बोला, इस दुनिया से चला गया। दिलीप सिंह घोड़िया नहीं होते तो पैसा कानून नहीं बनता। भारत का संविधान का 73 अमेंडमेंट हुआ। भारत का संविधान का पार्ट 9 पंचायत अधिकार, अब उसी का नाम होगा द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996 में बना। 2026 में 30 साल हो गया। 30 साल का नौजवान पियल है, असुतोल है, अब मुंह में कुछ नहीं है, भूखलोल है। प्रधानमंत्री बोलता है भूकाल और बोलता है लोकाल, आदिवासी नौजवान भूखलोल। साला 96 में पैसा बना और 30 साल हो गया और डेली धरना, डेली मेमोरेंडम। अरे बाबा तिलकामा जी मेमोरेंडम दिया था कि एट रैंडम किया था रे? जिस दिन लखनऊ से आप लोग आए होंगे, उत्तर प्रदेश से आप हैं, भाई जी आप ही हैं? नहीं, हाँ, उत्तर प्रदेश से भी आए। आदिवासी वो है, वो थे वीर बाबा तिलका मांझी वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। भागलपुर का ये को कमिश्नर को तीर से बीत दिया, बोला मैंने विधा हूं, और बाबा तिलका मांझी को जिंदा जो है फांसी पे चढ़ा दिया। और आज भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बाबा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो गया। अरे बनो तो रे वैसा बनो रे छोकरा लोग, ये लोग मुझे याद दिला दिया बाबा तिलका मांझी 1784 में वो लड़ाई जब बिहार का दिनेश मुर्मू ने 35 साल तक सीबीआई के खिलाफ लड़ाई लड़ा, उल्टा चोर पकड़ा, उल्टा उसको घुसड़ा, घर बर्बाद किया, तो बिहार का जोई गांव से दिनेश मुर्मू संथाल लड़का ने बाबा तिलका मांझी को आदर्श माना और लखनऊ में जाके सीबीआई के ऑफिसर को सीधे बेटा तीर मारना तो छाती में पेट में लग गया। हमें याद दिला दिया बाबा तिलका मांझी। बहुत पढ़ाई किया लेकिन हमने लड़ाई नहीं किया। बाबा तिलका मांझी लड़ाई लड़ा था, पढ़ाई नहीं पढ़ा था। बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा था, उतना पढ़ाई नहीं किया था। सिद्धू कानून उतना लड़ाई लड़ा था, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा था। हम लोग ज्यादा पढ़ लिया। बाबा अंबेडकर बोला था 3 चीज, शिक्षित बनो, बन गया आदिवासी। शिक्षित, संगठित रहो, नहीं हो सका आज तक। संघर्ष करो, सब कुछ का लोग है, सब पिटू लोग है। मिलेगा आदिवासी का डिक्शनरी मत देखो, संविधान तो बाद में बना है। आज अगर हम धर्म कोड मानते हैं, हमें लगता है हम भीख मांग रहे हैं। हम भारत देश के भिखारी नहीं, भीख नहीं मांग सकते। हम लड़ाई करके इस हिंदुस्तान के मालिक हैं। हमने 200 साल तक संघर्ष किया है। हमने मुगल साम्राज्य शासन के खिलाफ 800 साल गुलाम शिकार नहीं किया। 200 साल तक हम पराधीनता शिकार नहीं किया। आजादी हुआ 80 साल हो रहा है, लेकिन 200 साल तक आदिवासी लड़ाई लड़ा है। चाहे गोंड का विद्रोह हो, चाहे भील का विद्रोह हो, चाहे चेरो जाति का हो, चाहे खेरवार जाति का हो, या बिरसा मुंडा का उगलन हो, या कोल विद्रोह सिंगराय बिंद्राय का हो, या संताल विद्रोह हो, ये तमाम इतिहास हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग नेता के पीछे पड़ गया। बताइए क्या मिला? बंगाल में परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ जानते हैं? এই বাঙালির মানুষ দিদি দিচ্ছে লক্ষ্মী ভান্ডার ১,৫০০ করে দিচ্ছে। আমি যদি সরকার এসে যাব তার
सोचता होगा ये डबल वाला ही ठीक है, बदल गया, ये बदल गया। पूरा 1500 থেকে 3000 হয়ে গেল, साला सत्ता बदल गया। ममता बनर्जी हालत खराब, बदल गया। सरकार बदला होगा, पार्टी बदला होगा, लेकिन आज भी इस पश्चिम बंगाल एरिया में बोल रहा हूं, यहाँ ना तो 6 शेड्यूल है ना तो यहाँ 5 शेड्यूल है। क्या है? जहां से हम आसनसोल से बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से, ये बहुत बड़ा सवाल है। অনেক বড় প্রশ্ন। আরিমারান কুকলিña নড়ে তো কবরে নেব না। সেই জন্য আমি সান্তাল ভাষা কবিতায় বলেছি, আসামে দেব গজচৌকানা, ঝাড়খণ্ডে দেব রেজচৌকানা, আর বাঙালি তো কবল রেঁধে নেবো না, উড়িষ্যার তো অনাখন ডবল রেঁধে নেবো না। নয়তো সান্তালে আর কবিতায় লিখে दिया। इसका अनुवाद ये है कि आज भी हम भीख मांग रहे हैं। स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में गुलाम आदिवासी हम सोने के कटोरे में भीख मांग रहे हैं। धर्म कोड दो, 8 शेड्यूल में भाषा दे दो, 5वें अनुसूची में पैसा दे दो, CNT एक्ट को लागू कर दो। राष्ट्रपति बैठाया है रबड़ स्टाम्प। इसीलिए अरे आदिवासी समझो, ये राष्ट्रपति बना है फर्स्ट एंड लास्ट। आज इसीलिए बनाया है कि 2027 तक द्रौपदी मुर्मू को बैठा रखना है, और सेंसस होगा 2026 और 27। इसीलिए धर्म कोड बीजेपी नहीं देगा, क्योंकि इसको संविधान को बदलना है और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। खबरदार मोदी, खबरदार अमित शाह, जिस दिन तुम्हें भारत के संविधान बदलावे, जे दिन बीजेपी आरएसएस भारत के हिंदू राष्ट्र बनावे, हम उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत आदिवासी राष्ट्र बनेगा। अगर सच्चे माने में हम वीर सपूतों का खून मेरे शरीर में है, तो हम भीख नहीं मांगेंगे, हम भिक्षाटन नहीं करेंगे, सर कटा देंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, पूर्वजों का इतिहास को पुनरावृत्ति कर देंगे, तुमको हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। जिस दिन तुम संविधान बदल देंगे, हम तुमको बदल देंगे। जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, उस दिन भारत आदिवासी राष्ट्र बनेगा। कहाँ बनेगा? 10 को राज्य में 5 शेड्यूल है, गिन लीजिए। नॉर्थ ईस्ट टोटल 6 शेड्यूल है, 7 राज्यों में, तो कितना हुआ? 2 और 7, उसका डबल कीजिए, कितना है? पूरे देश में कितना राज्य है? 28। तो तेरा 28 राज्य बड़ा है कि हम बढ़ाए? ऐसे ही भारत का संविधान के मुताबिक आदिवासी 5 शेड्यूल 10 राज्यों में हम मालिक हैं। ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, मेजो, नागा, जितना भी है सब हमारा नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी बुड़ो, सब आदिवासी एक दिन अगर एकजुट होके चक्का जाम कर देंगे, हमको लगता है आर्यो फारियो, हिंदू सिंधु ये भाग जाएगा थलाल थलाल। हम लोग धरना बैठ रहे हैं। मैं कई बार राष्ट्रपति से मिला है, कई बार राज्यपाल से मिले हैं, ज्योति बसु से टॉक किया है, उड़ीसा में जेबी पटनायक से बात किया, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मैं विधानसभा से त्याग भी दे दिया। मैंने कई मुख्यमंत्री से बात किया, कई राज्यपाल से, कई राष्ट्रपति, अटल बिहारी वाजपेयी से बात किया, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री से बात किया, राजीव गांधी से बात किया हूँ, देवगौड़ा से बात किया हूँ। मेरा उम्र 70 साल हो गया और 50 साल से मैं इससे बात करो, इससे बात करो, इसलिए बात का भूत नहीं मानेगा, बात का भूत लात से मानेगा। बात का जिस दिन आदिवासी समझेगा, अरे धिक्कार है नौजवान, साला कॉकरोच पार्टी बना सकता है 2 करोड़ में। एक आदमी तीर धनुष लाया है, तुम डूब डूबे पिटते हुए, हाथ में तीर धनुष लेते हुए अगर यहाँ उपस्थित होते तो ये डूब डूबे पिटता और भारत में चला जाता है। मैं आज यहाँ हो सकता है चिट्ठी पत्र नहीं, व्हाट्सएप का दुनिया खबर सुना,
प्रेम साई मुंडा से वार्तालाप हुआ, मैं लिस्ट बना रहा था। मैं आखिरी बार, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि नित्यानंद हेम्ब्रम बहुत बड़ा विद्वान थे। आज नित्यानंद हेम्ब्रम नहीं रहा। उन्होंने माझी परगना को खड़ा किया, उन्होंने पूरा आदिवासियत की पेशा कानून का वकालत किया। आज वो नहीं है। पृथ्वी माझी को आप जानते हैं, आसाम का, उनका भी प्रॉब्लम हो गया, फिजिकली हैंडीकैप टाइप का हो गया, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने उन लोगों से काम किया हूँ, पृथ्वी माझी तरफ से काम किया है। मैंने काम किया नित्यानंद हेम्ब्रम से, मैं आपको बीडी शर्मा से काम किया हूँ। मैं उनको बुलाया था 2000 में, आपका जो है ना ये क्या पेशा कानून का जो है, क्या बोले एमपी थे, मर गए, अरे पेशा एक बनाने वाले चेयरमैन दिलीप सिंह गुरिया। मैंने दिलीप सिंह गुरिया को बुलाया, बीडी शर्मा को बुलाया, रांची में मीटिंग किया। दादा बाबू मीटिंग कीजिए, जन जागरण कीजिए, लेकिन जिस दिन आप कॉकरोच पार्टी से आगे बढ़कर सीधो कानून पैदा होइएगा, बिरसा मुंडा अवतारित होइएगा, सिंगराय बिंद्राय की तरह लड़ाई लड़िएगा, लीलांबर पीतांबर लड़िएगा, गोंड भील की तरह लड़ाई लड़िएगा, उस दिन आपको मांगना नहीं पड़ेगा। बाप बाप बोल करके देगा, और वो देगा आपका धर्म कोड देगा, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज देगा, 5th शेड्यूल में पैसा देगा, 9th शेड्यूल में कानून बना देगा, 244 आर्टिकल में आपका स्वशासन दे देगा, आपका जो है 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट दे देगा। कहां लड़िएगा? मैं तो एमएलए रहा हूं 35 साल पहले, मौजदारी नहीं था, मैं एमएलए बना था, कानून नहीं जानते थे, एमएलए जीता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। आप चाहिए कि बूढ़ा के चाही और छोड़ा के बाही। इसका अर्थ क्या है कि जितना बुजुर्ग है वो हम आपको रास्ता दिखाएंगे, और जितना नौजवान है कॉकरोच पार्टी की तरफ तुम निकलो तो सही। अब यहाँ से बिगुल फूकना है। मैं प्रयास किया हूँ, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, अलग अलग समुदाय है, 700 से ज्यादा अलग अलग बैनर बना है। हम लोगों ने भी 1915 में कलकत्ता में बनाए थे। नित्यानंद हेम्ब्रम भी थे, पृथ्वी माझी भी थे, और तमाम लोग थे हम लोग। तो दरबार बोल के एक संगठन बना है, अपॉइंटमेंट मांगे हैं 25 तारीख को जंतर मंतर, आपका 22 अगस्त को दिल्ली में 2 दिन का दरबार, हम लोग वहां भी जाएंगे। आप बुला रहे छत्तीसगढ़, वहां भी जाएंगे, आप उड़ीसा में, सब जगह जाएंगे, लेकिन संविधान में पार्लियामेंट में बनेगा। मैं एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। आपने एक नेता का कॉलम में टिक मार्क किया है कि नेता को हटाऊं, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि जितना भी 400 से ज्यादा एमएलए है उसको चेतावनी आदिवासी समाज से दे दीजिए कि ये सीट रिजर्व सीट आदिवासी के नाम से है। और पार्टी दिया बीजेपी, कांग्रेस, जो भी पार्टी, एक पार्टी का बात नहीं, माटी का बात है। तेरा पार्टी से बड़ा माटी बड़ा है, और माटी से बड़ा आदिवासी जाति बड़ा है। पार्टी से बड़ा माटी बड़ा है, और माटी से आदिवासी जाति बड़ा है। इसीलिए 400 एमएलए लोगों को हुक्का पानी जाम कर दो। बोलो बहुत तुम एमएलए बन गया रे, मंत्री बन गया रे, मुख्यमंत्री बन गया रे। उड़ीसा में मुख्यमंत्री आदिवासी, झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी, और भारत का राष्ट्रपति आदिवासी। और अमित शाह बोल दिया नहीं हम वनवासी, साला फिर भी बर्दाश्त करेंगे आदिवासी? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार सशस्त्र संग्राम होगा, एक बार लड़ाई होगा। बहुत कर लिया पढ़ाई, इसलिए अब होगा लड़ाई। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। 25 तारीख को जंतर मंतर में परमिशन मिल गया है, कल कॉन्फर्मेशन हो गया। 25 को दिल्ली चलो, वहाँ डॉक्टर हीरा मीना और प्रोफेसर जितेंद्र मीना, उनको जिम्मा दे दिया। मेरे तरफ से कोशिश होगा हर स्टेट से 2-2 आदमी, हर समुदाय से 1-1 आदमी कम से कम जाए। और कल हम लिस्ट भेज रहे हैं, 26-27 को मांगे हैं राष्ट्रपति से। परसों मुझे फोन किया था राष्ट्रपति भवन, कौन कौन आ रहे हैं मोबाइल नंबर के साथ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम अलग गुट नहीं बनाना चाहते हैं।
अलग से आदिवासी को विभाजित नहीं करना चाहते हैं। हमारी विभाजित करना कमजोर हुआ है, अलग अलग पार्टी का झंडा ढोया, समाज को कमजोर किया है। अब हम लोग पार्टी लाइन में नहीं जाएंगे, माटी लाइन में जाएंगे, जाति लाइन में जाएंगे। इसलिए चलिए 25 तारीख को दिल्ली चलो, जंतर मंतर, और अमित शाह को जवाब देना है, तुम कहां से आ रहे हो? तुम आरएसएस लाइन से, बीजेपी लाइन से आदिवासियों को तुम आदिवासी नहीं करके वनवासी बोला। हम संविधान को बदल देंगे, भारत का मानचित्र बदल देंगे, और अमित शाह नरेंद्र मोदी को भी 2029 में हम बदल देंगे। ये संकल्प। और चलिए हम 25 जून को दिल्ली चलो, 26-27 को राष्ट्रपति से मिलेंगे, धर्म कोड सबका राय लिए हुए हैं, लेंगे, मेमोरेंडम बन रहा, 8 शेड्यूल में गोंड का भाषा लिखा जाना चाहिए, भील का मान्यता देना चाहिए, और जितना 5 शेड्यूल एरिया में परिसीमन नहीं होना चाहिए जो परिसीमन 6 शेड्यूल में हो रहा है। हमारा झारखंड में अभी परिसीमन लागू होगा 2026, तो 14 लोकसभा में 5 रिजर्व सीट है, राजमहल सीट एक तो डिलिस्ट हो जा रहा है, कौन बर्दाश्त करेगा? जहां से मैं हमारा सिंहभूम जिला से घाटशिला से एमएलए बनता हूं, वो घाटशिला 1952 से रिजर्व सीट फॉर एसटी, इस बार 2026 में उसको रिजर्व कर रहा है, और 28 एमएलए सीट से 7 को खत्म कर देना है, एक लोकसभा खत्म। एक परिसीमन मानेंगे, एक परिसीमन नहीं मानेंगे। इसलिए चलिए दुनिया जाना, दुनिया माना, दुनिया जाना 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, लेकिन 1952 से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक आदिवासी मान्यता नहीं मिला। इसीलिए नहीं मिला, हमारा 400 एमएलए एसटी एमएलए काम का नहीं है, उसे इस्तीफा मांगो, उसे रिजाइनेशन मांगो, उसको समाज से बहिष्कृत करो। और 47 एमपी जो हमारा धर्म कोड नहीं मानता है, हमारा आदिवासियत की बात नहीं करता, वैसे एमपी लोगों से इस्तीफे मांगो, रिजाइन दे दो। इन्हीं शब्दों के साथ जय आदिवासी। जिस तरह लेनिन ने तो 1917 में बोला था, दुनिया के मजदूर एक हो, मैं सुर सिंह मिश्रा ये उद्घोष करना चाहता हूँ, भारत के आदिवासी एक हो। जोहार। मंच में बैठे भाई और हमारे धाम साहब को और विश्व जी को भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज इस मंच में बोलने का मौका मिला। मैं झारखंड से, रांची से आई हूँ। मेरा नाम सेलिना लकड़ा है और मैं आदिवासी जन परिषद के महिला मोर्चा से हूँ। आज मुझे मौका मिला आसनसोल आने के लिए, बंगाल की धरती में पैर रखने के लिए। इससे पहले मैं नासिक गई थी, और जो धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड का बात करते हैं, हमारे झारखंड से ही शुरू हुआ, और झारखंड से लेके नासिक, नासिक से लेके मेरा कहना है कि पूरे राज्य का दौरा करके सबसे लास्ट में जंतर मंतर की धारणा दे, ताकि हमारी संख्या 300-400 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जाए, एक उन्मूलन करे। आपने देखा होगा कि सरना सनातन एक है, कुछ लोग आदिवासी ही लोग बोल रहे हैं कि सरना सनातन एक है। मैं उनको बोलना चाहती हूँ, अगर सरना सनातन एक है तो आप आदिवासी क्यों बोलते हैं अपने आप को? सबसे पहले हमें घर से ही उन्मूलन करना पड़ेगा। अभी हर स्टेट से यहाँ पर सब कोई आए हुए हैं, ये हॉल कचाकच से भर जाना चाहिए था, लेकिन जहां समाज की बात आती है वहां हम लोग नहीं निकलते हैं। आदिवासी धर्म कोड, ना ही सरना कोड। आपको अगर आदिवासी धर्म कोड के लिए लड़ना होगा तभी आपको सरना कोड भी मिलेगा, और नहीं तो फिर वैसे ही होगा कि आप
जितने भी आदिवासी है सब हिंदू में चले जाएंगे। हम लोग मांग करते रहेंगे, 2-4 लोग मांग करते रहेंगे, यहाँ हिंदू सब कहला जाएंगे। तो इसलिए आप लोग सचेत हो जाइए। अभी जो जनगणना हो रही है उस जनगणना में हमें धर्म कोड कहाँ लिखना है उसे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में बैठिए, बताइए, ग्राम सभा कीजिए, उन लोगों को बताइए कि हमारे संस्कृति हमारे जमीन से बनी हुई है, ना ही मूर्ति पूजा से बनी हुई है। प्राकृतिक पूजा ही हमारा धर्म है। अगर हम प्रकृति पूजा करते हैं तो हम असल में हम आदिवासी है, नहीं तो ये सनातन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते ही रह जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, हम सब आदिवासी हिंदू चले जाएंगे। आप लोग अपना घर से निकलिए, एक आवाज बनाइए, एक छत के नीचे आइए, तभी हम अपने आप को आदिवासी कहलाएंगे। ढेर सा गुट बना के हम लोग अलग अलग संगठन से अलग अलग बात को रखते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी सरना ईसाई करते हैं। अगर इसी तरह किया जाएगा तो हमें कभी धर्म कोड नहीं मिलेगा। हमारे दादा ने इतना अच्छा से बोले हैं, 70 साल तो हम लोग सब रिटायर कर चुके होते हैं, लेकिन वो बात अभी तक हम लोग घिसे जा रहे हैं। कहाँ हैं हम लोग आदिवासी? यहाँ मंच में देखिए पूरा पुरुष भरा हुआ है, लेकिन हमारी महिला एक भी नहीं निकलती है। नारी ही शक्ति है। अगर नारी अगर नहीं बोलेगी, अपने बच्चे को नहीं सिखाएगी, अपने धर्म के बारे में नहीं बोलेगी, बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। नारी एक शक्ति है। अगर आप ईंट से ईंट बजा सकती है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतना ही बोलूंगी कि एक छत के नीचे आए और ना ही सरना ईसाई करे और ना ही सनातन और ना ही कोई और जाति, केवल हम आदिवासी है और आदिवासी ही रहेंगे। इस धर्म कोड को लेके अभी हर स्टेट से हमारा जितनी भी टीम है, जहां जहां बुलाएंगे हम लोग वहीं जाएंगे। तो नारी शक्ति भी जाइए, कंधे से कंधे मिलाइए, बच्चे को सिखाइए, बच्चे को बताइए कि हमारे संस्कृति क्या है। सब पर्व मनाते हैं, खुशी से मनाइए, लेकिन अपना संस्कृति को भी बचाइए। बस मैं इतना कहती हूँ। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका जी को।